Okay, so let's continue our session. तो हम आगे बढ़ते हैं. So which point were we at? तो जाने से पहले हम किस बात पे बात कर रहे थे? Wonderful. You're all listening. You're all awake. Nice to hear you. सब जगह में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है. Okay. So let's get into Exodus chapter 33. Sorry about that. So we were discussing about intimacy with God, and the example we were discussing is about Moses. तो हम ब्रेक पर जाने से पहले परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध के बारे में बात कर रहे थे, और जो उदाहरण हमने दिया था वो मूसा के बारे में था. So we see that Moses is completely content and satisfied with the presence of the Lord. तो हम देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत ज्यादा संतुष्ट था. In Exodus 33:15, he says, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. He does not want to go without the presence of God. तो निर्गमन के 33:15 पद में देखेंगे, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा. So he is asking God to show him God's glory. तो वो परमेश्वर से मांग रहा है कि परमेश्वर आप मुझे अपनी महिमा दिखाएं. So glory is nothing but resting and fully enjoying the presence of the Lord. तो महिमा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना या निवास करना है. So even in Isaiah chapter 40 verse 31, we see that those who wait upon the Lord, they will renew their strength. यशाया 40 का 31-31 कोई पढ़ेगा? They shall mount up with wings like eagles. वे उकाबों के समान उड़ेंगे. They shall run and not be weary, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, and they will walk and not be faint. चलेंगे और थकित न होंगे. So when we wait and rest in the presence of the Lord, जब our हम strength is renewed. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपेक्षा करते हैं तो हमारी हिम्मत या ताकत वो बढ़ाता है. And in Psalms 84:5, we read, blessed is the man whose strength is in you. भजन संहिता 84 का 5, 84 का 5. So we see that Moses wants more and more of God himself. तो हम यहाँ देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत अधिक चाहता है. And God is pleased to reveal himself to Moses. और परमेश्वर प्रसन्न है अपने आप को मूसा के आगे प्रकट करने के लिए. So on the contrary, what about the children of Israel? तो इसके अंतर हम देखेंगे कि इस्राएलियों के बारे में क्या कहा गया है. So Moses is their leader. He brings them out of the bondage of Egypt. तो हम देखते हैं कि मूसा जो है वो इनका अगुवाई होता है, और वो उनको बंदी थे पहले, और उनको वहां से छुड़ा कर
लाने गया होता है। So when we see the children of Israel, they called unto God at the time of the desperation and suffering. तो हम देखते हैं कि जब वो इस्राएल के बच्चों को उस परिस्थिति से निकालने के लिए बुलाए गए होते परमेश्वर के द्वारा, And when God showed them favor and mercy and grace, और परमेश्वर ने उनको दया करुणा दिखाई, they came out very strong, and also they came out with the plunder of Egypt. तो वो वहां से बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थी होके निकले और वहां का जो सारा धन है वो भी लेकर निकले। So they also saw the Red Sea miracle, which was practically impossible. और उन्होंने वहां पर वो लाल समुद्र का जो मिरेकल, अद्भुत चमत्कार भी देखा। So God protected them by the pillar of cloud in the morning and the pillar of fire at night. तो परमेश्वर ने उन्हें जो बादल के तौर पर उन्हें दिन में उनकी सुरक्षा की और रात को आग के तरह उनकी सुरक्षा की। So they experienced God, yet they grumbled and they were complaining. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, परंतु फिर भी वो हर वक्त शिकायत करते रहते थे। So they were complaining for water, they were complaining for food. तो वो खाना और पानी हर चीज के लिए शिकायत So करने they लगे even थे। remembered whatever they left in Egypt, garlic, all the cucumbers and whatever they used to eat in Egypt. तो वो मिस्र राज्य में जो सब वस्तुएं छोड़ कर आए थे उनको भी याद करके शिकायत करने लग गए। When God actually fed them with manna, the तो food of angels. तो जब परमेश्वर ने स्वर्ग का जो आहार उन्हें खिलाया मन्ना, तब दूतों के आहार को, He gave them quails also when they asked for it. तो तब उन्होंने खाने के लिए पक्षियों को भी दिया। So the Bible says they were stiff-necked. Stiff-necked. तो वचन कहता है कि उनकी गर्दन अकड़ी हुई थी। And they were ungrateful. और वो धन्यवाद नहीं देते थे इस बात पे। So they experienced all of God's goodness. तो वो परमेश्वर की सारी अच्छाइयों का अनुभव कर चुके थे, But they wanted to live in their own lifestyle. पर तब भी वो अपने पुराने ही जीवन शैली में रहना चाहते थे। So we see that Joshua and Caleb were the only people who proceeded from Egypt. They were able to enter Canaan. तो हम देखते हैं कि जोशुआ और कैलेब वो दो ही व्यक्ति थे जो कनान तक पहुंचे थे, जो उनका प्रॉमिस्ड वादा किया हुआ जमीन पे पहुंचे थे। So the others who joined were the next generation. तो दूसरे जो उन्हें उनके साथ जुड़ पाए वो अगले नई पीढ़ी के लोग थे। So it is very sad to note that because of their own nature, they were not able to experience this intimacy with God. तो ये बहुत दुखद है जानने के लिए कि वो अपने ही स्वभाव के कारण वो परमेश्वर की अनुभूति नहीं कर पाए। So our own nature sometimes may be a stumbling block for us to experience God for who He is. तो कई बार हमारा जो स्वभाव है वही परमेश्वर को जानने से हमें रोकता है। So when we spend more and more time with God in prayer, He corrects us, He convicts us, He talks to us. जब हम प्रार्थना में बहुत अधिक समय बिताते हैं तब परमेश्वर हमें सही करता है, हमें धर्मी बनाता है और हमारी गलतियों को सुधारता है और बताता है हमें। Changes our own selfish attitudes. और हमारे ही स्वभावों को, जो गलत स्वभावों को वो बदलता रहता है To experience God. ताकि हम परमेश्वर की अनुभूति कर सके। We might not be in that place yet. हम शायद अभी उस जगह पर ना हो। So what we are trying to say is we can all get into that place of intimacy. तो हम यहाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर कोई हम में से उस जगह पर पहुंच सकता है, परमेश्वर के साथ जो निकट या घनिष्ठ संबंध है उस जगह पर हम पहुंच सकते So हैं। there's another reason why I would encourage all of us to get into this intimacy with God. तो एक और कारण है जिसके लिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में आ सकें। See, we read about Moses, how he was eager to be in the presence of the Lord.
तो हमने मूसा के बारे में अभी पढ़ा कि वो किस तरह से इतने इच्छुक थे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रह सके। But when we look back in Exodus chapter, the early chapters, maybe first chapter or the second chapter, तो हम निर्गमन के शुरुआती अध्यायों में सीखेंगे we see that Moses was the prince of Egypt at that time, and he recognized his call, he recognized his purpose. तो हम देखते हैं कि मूसा जो है वो मिस्र का राजा हुआ करता था और वो परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान पा रहा था उस समय। But at that time, he was very impulsive. और उस समय वो बहुत गुस्से वाला या वैसा स्वभाव का था। So, although he recognized God's purpose, he wanted to do it he wanted to do it his way. तो जबकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान पा रहा था, तब भी वो अपने तरीके से चीजों को करना चाहता था। But God had completely different plans for him. लेकिन परमेश्वर को उसके लिए अलग उद्देश्य थे। So we see that the same Moses, it's recorded in the Bible, the one who killed one of the Egyptians and ran away from there. तो हम देखते हैं वही मूसा ने एक मिस्र के एक व्यक्ति का खून कर वहां से भाग गया था। See, we see that Moses is the meekest man on earth. तो हम देखते हैं कि मूसा वहां पर जो बहुत ही कमजोर आदमी था। Who gives him that certificate? कौन बोलता है कि वो ऐसा है? God calls him as the meekest man on earth. परमेश्वर उसको ऐसा कहता है। So this is very encouraging for us because the Bible is written for us. तो ये बहुत प्रोत्साहन देता है हमें क्योंकि वचन जो है पवित्र बाइबल वो हमारे लिए लिखा गया So है। every example recorded for us in the Bible is for us to learn and change. तो हर वो उदाहरण जो पवित्र बाइबल में दिया गया है वो हमारे लिए ताकि हम उससे सीख सके और बदलाव ला सके अपने Change अंदर। into what? किस चीज की ओर बदलाव ला सके? Less of us and more of Jesus. तो हम अपने आप को घटाकर परमेश्वर के या यीशु मसीह की तरह और ज्यादा बढ़ पाए या अधिक उसकी तरह हो पाए। So when we spend time with the Lord and we grow in our relationship with Him, जब हम समय बिताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में तब हम उनकी तरह और बढ़ पाते हैं। so that's when we also grow in Christ likeness. तभी हम परमेश्वर की तरह या यीशु मसीह की तरह और बन पाते हैं। So everything what we do will be an overflow of that intimacy from God. तो हर वो चीज जो हम करते हैं वो हमें परमेश्वर की जो घनिष्ठ संबंध के रूप से या तौर से हमसे उमड़ कर बाहर आता है। So because we love Jesus, we are doing this. क्योंकि हम यीशु मसीह को इतना प्रेम करते हैं इसीलिए हम ये करते हैं। Because we love Jesus, we are speaking in this way. क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं इसीलिए हम इस तरह बात करते So हैं। as we spend more time with the Lord, we grow in this intimacy. तो हम जैसे यीशु के साथ या परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं हम उस घनिष्ठ संबंध में आगे बढ़ते रहते हैं। So we also have some barriers, that is the obstacles that stop us from growing in this intimacy with the Lord. So the first thing is always being sin consciousness instead of concentrating of what God has done in our lives. तो पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठता में आने वाली जितनी बाधाएं हैं उसको तोड़ने के बारे में हम क्या कर सकते हैं। पहला पाप एहसास रखना, पाप का एक एहसास रखना। We should always remember who we are in Christ. हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर में या यीशु मसीह में हम कौन हैं। Sometimes we are lazy to go to the presence of the Lord. कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए बहुत आलसी होते हैं। And we also see that when we get involved in so many activities, we get busy. We read of the example of Martha and her sister Mary. तो हम उदाहरण देखते हैं मार्था और मरिया के बारे में। So Mary chose to sit in the feet of the Lord and hear Jesus. तो मरिया ने जो किया वहां पर कि वो यीशु के चरणों पर बैठना चाहती थी। But if we see Martha, she was serving the Lord Jesus
पर हम वहाँ मार्था को देखते हैं, वो यीशु मसीह की सेवा में लगी हुई थी। We see Mary chose the good part. पर हम देखते हैं कि मरिया जो है वहां पर जो अच्छा हिस्सा है उसको चुना उसने। So everything else what we do should flow from this intimate relationship that we have with God. तो हर वो चीज जो हम करते हैं वो परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध से उमड़ना चाहिए हमारे अंदर से। And sometimes we might have some grudges or unforgiveness. We might not be able to let go of certain things. If we hold these things against people, then we cannot grow in our intimacy with the Lord. तो हमारी जो हृदय की गलत स्थितियां को, जैसे उदाहरण के तौर पे लड़ाई झगड़े या प्रतियोगिता या क्षमा न कर पाना, अन्य वस्तुओं के लिए वासना, ऐसी चीजें जो है ये भी हमें रोकती हैं उनकी उपस्थिति में जाने से। So the first thing we saw is we pray in accordance to the nature of God. तो पहला जो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार प्रार्थना करते हैं। And the second one is intimacy with God. दूसरा जो हमने देखा वो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखना। And the third thing for a good foundation in prayer is to know the redemptive heart of God. तो तीसरा हम जो देखने वाले हैं आगे जाके वो परमेश्वर का छुटकारा देने वाले हृदय के तौर पर। So God's heart is always redemptive in nature. हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो हृदय है वो हमेशा छुटकारा देने वाले जैसा हृदय है। How do we know this? Is because He came to save the lost. हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह जो खोए हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए आए थे। We know that Christ died for us while we were sinners. हम जानते हैं कि यीशु हमारे लिए अपनी जान दी जब हम पहले पापी थे। So when everything is lost, only God can redeem it back to its original position. तो जब हर वो चीज हमसे खो गई है या हमसे चला गया है, खाली परमेश्वर एक ऐसा है जो हमें वो सब वापस दे सकता है। So that is what Jesus did on the cross for us. तो ये वो है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया हमारे लिए। So because God is redemptive in nature, so we are also called to be redemptive in our nature towards others. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा देने वाला स्वभाव का है, तो हमें भी बुलाया गया कि हम दूसरों के प्रति छुटकारा देने वाले स्वभाव वाले हो पाए। So God's love is unconditional for us. परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे लिए बिना किसी शर्तों के है। Any condition He can reverse it back if we go to Him. तो ऐसी कोई भी अवस्था अगर होगी तो वो उसको पलटा सकते हैं या उल्टा सकते हैं जब हम उनकी उपस्थिति में जाते हैं। So shall we read Romans chapter 8 verses 38 and 39? रोमियो 8 38 39। So we see that He saves to the uttermost. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें सबसे ऊंचे तक हमारा उद्धार करता है, सबसे बेहतर तरीके से। And in Hebrews 7:25 we read, therefore He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. और इब्रानियों का 7:25 में देखेंगे, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। So Jesus is our example for prayer because He prayed to the Father most of the time while He was here. तो हमारा उदाहरण यीशु मसीह है, क्योंकि जब वो पृथ्वी पर थे तब उन्होंने ज्यादातर समय या अधिकतर समय उन्होंने प्रार्थना में बिताई परमेश्वर के प्रति। So after resurrection, He is seated at the right hand of the Father and He is making intercession for each and every one of us. तो जब वो जीवित उठे, यीशु मसीह जब जीवित हो उठे तो वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे थे और वो हमारे लिए तब से
परमेश्वर के आगे मध्यस्थी कर रहे हैं। So God has loved us, and once He has began something good in us, He never quits on that. तो क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जब वो कुछ अच्छा करते हैं हमारे लिए तो वो बीच में नहीं रोकता, उस चीज को पूरा करता है। So God can save from any destruction or any desolation and bring it back to the original place where it intended to be, to what our purpose is. तो परमेश्वर हर वो चीज जो नष्ट हो चुकी है या किसी ऐसे हद तक गुजर चुकी है जो हमें लगता है कि उद्धार नहीं हो सकता, हर वो चीज को वो उद्धार कर सकते हैं या बचा सकते हैं। So the devil might have laid barriers in your thoughts, in your mind, against the Lord, against His word. But one truth from God's word, just to know who you are in Christ, will just break down those barriers that the evil one has built in your life. तो शैतान जो है वो शायद आपके मन में, आपकी चिंताओं में ऐसी चीजों को डाल देता है जिससे आपका आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन वचन में से हम अगर इस चीज को जानते हैं कि हम कौन है यीशु मसीह में, वो उस बाधा को तोड़ देता है। We see that God is always redemptive in nature, and we see many examples in the Bible. We see that the sisters Mary and Martha, they lost their brother. तो हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे पवित्र बाइबल में, और उनमें से एक है मरिया और मार्था के बारे में। So when Jesus sees Martha, he says, if you believe, you will see the glory of God. तो जब यीशु मसीह मार्था को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी। So Lazarus was resurrected back to life, and nothing was impossible with Jesus. तो लाजर को परमेश्वर ने फिर से जिंदा कर दिया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। So they saw the glory of God in their lives. तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखा। So even though there was a painful time that they were crying because their brother died, Jesus resurrected Lazarus back to life. तो चाहे उनके जीवन में ऐसा एक दुखद समय आया होगा जब उनका भाई वहां पर मर गया था या इनकी मृत्यु हो गई थी, पर यीशु मसीह ने उनको जिंदा करके या उनको जीवित कर दिया। So we see that nothing is impossible with God if we trust in Him. तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, असाध्य नहीं, जब हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। So if we are praying for salvation of someone, we can truly trust that God will deliver that person and will give salvation to that person. तो अगर हम किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, तो हम ये विश्वास रख सकते हैं कि परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। It is God's will that none should perish. ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी त्रास नाश ना हो, किसी का भी नाश ना हो। So we see that any situation, God can intervene. तो हम देखते हैं किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ आ सकते हैं। So you might have lost hope in that situation, तो आपको शायद उस परिस्थिति में कोई भी आशा न दिख रही हो, but when we turn to God, He redeems it back. तो जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं तो वो उस चीज से हमें बचाते हैं। It might be a life situation, it might be a relationship, or it might be finances that you're struggling for. तो ये किसी भी तरह की जीवन की परिस्थिति हो सकती है, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो या किसी के साथ किसी तरह का रिश्ता या संबंध के साथ हो। You might have lost the dream just because you don't have finances to study that subject. तो शायद आपको किसी विषय के बारे में पढ़ना होगा, तो आपने शायद सिर्फ वो सपना इसीलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि आपके पास उसकी व्यवस्था नहीं थी। But when we pray to God, He will make a way. और जब हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं, वो जरूर आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। So each of us might be in various seasons of life in different situations. तो हम हर कोई अपने जीवन में अलग अलग स्थितियों में या अलग जगहों पर होंगे। So God can redeem any situation. परमेश्वर किसी भी स्थिति को उद्धार कर सकता है या बचा सकता है। So what should we do is we just go to God, pray for one another.
तो हम सिर्फ इतना करें कि हम परमेश्वर के निकट जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएं। So trusting in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। So the next thing is we reflect on the promises of God. तो अगला हम परमेश्वर के वादों पर बात करेंगे या So we should be familiar with God's word to know the promises of God. तो हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। So we read that the just shall live by faith. तो हम पढ़ते हैं कि जो धर्मी है वो विश्वास से आगे जीते हैं। So we can apply that in our own life. तो उस चीज को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। Father, I don't see any situation right now, परमेश्वर, मैं अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं देख पा रही हूँ, but I live by your word. परंतु मैं आपके वचन से चलती हूँ। So in faith, I claim तो विश्वास में मैं इस चीज की घोषणा I करती live by हूँ faith कि and not by sight. कि मैं विश्वास से आगे चलती हूँ, ना कि जो मुझे दिखता है। And we always know that when we pray in accordance to God's promises, it is His word that we are proclaiming here on earth. और हम हमेशा इस चीज को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं पर प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी वचन पर आधारित प्रार्थना करते हैं और वो सुनता है। So we already spoke of this verse, like, if you abide in me and my words abide in you, ask what you desire and it will be given to you. So when we walk in God's words and His ways, what we ask, we will receive. तो हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा कि जब हम उनमें बसते हैं और वो हम में निवास करता है, जब हम ऐसी कोई भी चीज मांगते हैं परमेश्वर की ओर, वो हमें देता है। So for this, we should know the promises of God. और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन जानना बहुत जरूरी है। So the next thing is we partner with the Holy Spirit. तो अगला हम देखेंगे पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी। So the Holy Spirit puts within us the desire to pray, and He is known as the Spirit of grace and supplication. तो पवित्र आत्मा जो है वो प्रार्थना का आत्मा कहा गया है। So sometimes we do not see things externally, but the Holy Spirit will exactly tell us for what to pray for. कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बाहरी रूप से सब दिखता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताती है कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। Whatever the Holy Spirit reveals to us, if we pray accordance to that, then we see the results. तो जो पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है या हमें दिखाता है, अगर हम उस हिसाब से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें आगे लेता है। So He reveals to us the mind of God. तो वो परमेश्वर के मन को हमें प्रकट करके देता है। So for example, if we see that somebody can come and ask us to pray for a job, तो अगर कोई हमें अपने नौकरी के लिए प्रार्थना करने के लिए पूछता है, but sometimes the Holy Spirit will pray within us so that they correct their financial situation. तो कई बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसे प्रार्थना करता है कि वो अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सके। So it might be various times the Lord will put within us the desire to pray. तो कई बार हम परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी इच्छा देता है कि हम किस तरह से दूसरों के लिए प्रार्थना कर But that सकें, will not be what we see on the outside. पर वो ऐसा नहीं होगा जो हमें बाहरी तौर से दिखेगा। So we should always depend on the Holy Spirit for prayer. तो हमें हमेशा पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। And the other thing is we should always remember our position in Christ. तो हमें हमेशा परमेश्वर की हमारी जो उपस्थिति है परमेश्वर के जगह या मसीह में हमारा जो स्थान है उसके बारे में हमें ध्यान देना है। So we go to Him, we know who our identity is. So last week you would have learned about identity, तो who I am in Christ. तो पिछले हफ्ते आपने सीखा होगा हम परमेश्वर में कौन है इसके बारे में। So we go to Him because I am His righteousness. हम उनके निकट जाते हैं क्योंकि हम उनके धर्मी हैं। So because of God's faithfulness, we go to Him. So we should never forget this one. क्योंकि परमेश्वर विश्वस्त है इसीलिए हम उसके निकट जाते हैं। And then it's a life of surrender. समर्पण का एक जीवन होता है प्रार्थना। So a life of surrender is completely accepting the word and submitting to God's word.
तो प्रार्थना में समर्पण या उस जीवन में समर्पण है परमेश्वर के प्रति पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर देना। या So in prayer, we go to Him telling that I'm desperately dependent on you, Lord. तो हम प्रार्थना में हम परमेश्वर को ये कहते हैं कि प्रभु हम पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हैं। So the Lord is the one who helps us to walk righteously before Him. परमेश्वर वो है जो हमें धर्मी होकर चलना सिखाता है। Proverbs 15:29 we read, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. नीति वचन 15 का 29, नीति वचन 15:29। So surrendering is something like we have to surrender all areas of our life to God. तो समर्पण हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन में हमें करना चाहिए। So sometimes we might have boxes or rooms in our lives. Lord, this area I will handle. Don't come in this area. तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जो हमें लगता है कि ये तो मैं खुद ही देख लूंगा, परमेश्वर आप इसमें मत आइए। So this area is fine, but I will deal with this. क्योंकि ये जो क्षेत्र है मेरे जीवन में ये सही है, इससे मैं देख लूंगा। That is not a good place to be in. तो ये एक सही जगह नहीं है। We have to surrender wholeheartedly and willingly, knowing that He has the best plans for us. तो हमें परमेश्वर को पूरे मन से और दिल से और सूझबूझ से जानकर समर्पण करना है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारे लिए सबसे उत्तम सोचता है। So sometimes it's very difficult for us to obey in everyday life, but in big decisions we'll ask God, Lord, what should I do in this? तो कई बार जो रोजमर्रा के जीवन में हमें परमेश्वर की जो इच्छा है उसके लिए हम ढूंढते या सोचते नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे जीवन में जो बड़े डिसीशंस या जिसके सोचना पड़ता है हमें, जब उन चीजों के लिए हम हमेशा परमेश्वर के आगे जाते हैं। It is very important that every day we yield to God in humble surrender to His word. Lord, what should I do today? तो ये बहुत जरूरी है कि हर रोज हर एक चीज के लिए हम परमेश्वर के आगे या उनकी इच्छा जानते हुए आगे प्रार्थना करें। So if we are not able to surrender to God, sometimes we start to do things in our own way and we end up getting into consequences. अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल पाते हैं तो अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हैं, कई बार हम उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। And Psalm 66:18 we see, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. भजन संगीता 66 का 18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनना। So our sin becomes a hindrance for our prayer. तो हमारा पाप हमारे प्रार्थना में एक बाधा डाल देता है। So if we confess our sins to God and if we are clear in our conscience, we can be so sure that whatever we ask, He will hear us because it is accordance to the word. तो अगर हम अपने पापों से दूर या अनर्थ कामों से या पापों से ऐसी चिंताओं से दूर रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके वचन और उसके इच्छा अनुसार आगे चलते हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम इस बात का विश्वास रखते हैं कि वो हमें जरूर सुनेगा। So surrendering to God is very important. तो परमेश्वर की ओर समर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है। Sometimes we do not understand His ways, yet what His word says, if we still obey, we will receive the blessings what God has for us. कई बार हमें परमेश्वर के जो मार्ग है वो समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं वो हमें इस बात को समझाता है या बता देता है। So what are the foundations that we saw for a strong prayer life?
तो हमने ऐसी कौन सी बुनियादों के बारे में बात की एक मजबूत प्रार्थना जीवन के The लिए? first thing we saw is the nature of God. पहला हमने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखा। Then we see that we should grow in our intimacy with the Lord. दूसरा हमने देखा कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में आगे बढ़े। And then we saw that we should pray in accordance with the promises of God. अगला हमने देखा कि हम परमेश्वर के वचन अनुसार प्रार्थना करें। And then we saw that we partner with the Holy Spirit and pray in sync with the Holy Spirit. अगला हमने देखा कि हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में प्रार्थना करें। So we pray out of our position and authority in Christ. हमारे स्थान और अधिकार के अनुसार प्रार्थना करें परमेश्वर में हम जो हैं। And then we are called to live a life of humble surrender before God. और आखिरी में हम देखते हैं हम परमेश्वर के आगे विनम्र तौर से समर्पण के तौर पर प्रार्थना करें। So the third chapter is we see the Lord Jesus as our model and standard for prayer. तो अगला हम तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु हमारे आदर्श और मानक होने चाहिए। The first thing is, if Jesus came in this world as flesh, he didn't need to pray, but we see that Jesus always prayed. हम देखते हैं वचन में ऐसे लिखा गया कि जब यीशु जो है वो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए हैं, उनको प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तभी भी हर वक्त प्रार्थना में थे। So we see that early in the morning, Jesus went alone to pray. तो हम देखते हैं कि भोर के दिन वो सुबह निकल के प्रार्थना के लिए जाते थे। Let us read Mark chapter 1 verse 35. मरकुस 1:35। Now in the morning, भोर को दिन, having risen a long while before daylight, भोर के दिन निकलने से बहुत पहले he वह went out, उठकर निकला departed to a solitary place, और एक जंगली स्थान में गया and there he prayed. और वहां प्रार्थना करने लगा। So we see that before doing anything else in this world or before facing the world, तो हमने देखा कि यीशु मसीह पूरी दुनिया को मुखातिब होने से पहले उन्होंने he gave the time to God. He spent time with God. उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। So for some of us, it might be difficult in the early morning. तो कई लोगों के लिए सुबह उठकर ये करना या बहुत मुश्किल शायद हो पाए, Because our routine starts little late. क्योंकि हमारा जो रोजमर्रा का जो चीजें हैं वो शायद थोड़ा देर से शुरू होता होगा। But whatever is our routine, we should give our first preference to God. तो चाहे हमारे जीवन में हम जैसे भी चल रहे हों, लेकिन सबसे जो पहला अधिकार है वो हम परमेश्वर को दें, पहला समय है वो परमेश्वर को दें। So when we give the best time, our prime time to God, the whole day flows in accordance to that. अगर हम अपने जीवन में जो सबसे उत्तम समय है, जो पहला समय वो परमेश्वर को देते हैं, तो बाकी का पूरा दिन बहुत ही अच्छा या आशीषित रहता है। See, sometimes we don't know what the day has for us. कई बार हमें नहीं पता होता कि आगे का दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा। God knows everything. लेकिन परमेश्वर को हर वो बात पता So है। when we go to God in the morning and entrust everything to God, He will lead us step by step. तो जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं सुबह और हमारे सारे जीवन को या दिन को उनके हाथों में समर्पण करते हैं, तो हर वो चीज वो बहुत बेहतर रूप से आगे बढ़ाता है। So there are times when we spend time with God in the morning, the Lord will prompt us to spend more time in prayer. तो कई बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर खुद हमें इस चीज को आगे बताएगा कि हमें उसके उपस्थिति में और बैठना है या और प्रार्थना करना है। So that will help us to face the challenges for the day. तो जो पूरे दिन में जैसे भी हमारे आगे कठिनाई या कुछ भी आएगी, उस चीज को सामना करने के लिए हमारी मदद करेगी। So Jesus's focus was always to do the will of the Father. तो परमेश्वर यीशु मसीह का ध्यान हमेशा पिता परमेश्वर की जो इच्छा थी उस पर चलने पर था। So if we want to pray like Jesus, हम यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करें, so we have to be focused always on doing the will of the Father. तो हमारा ध्यान हर वक्त इसी चीज पर लगा रहना चाहिए कि हम पिता परमेश्वर की जो इच्छा है, उसकी आज्ञा है या उसकी जो
योजना है हमारे लिए, हम उस पर चल पाए। So another time we see Jesus pray is after the miracle of feeding 5,000 with 5 loaves of bread and 2 fish. तो एक और उदाहरण जो हम देखते हैं, उन्होंने एक अद्भुत कार्य जो किया था, वो 5,000 लोगों को जब उन्होंने खाना खिलाया था। We read of this in Mark chapter 6, 45 and 46. मरकुस 6 का 45 और 46। Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side in Bethsaida, while he sent the multitude away. And when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. मरकुस 6, 45, 46 में देखते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, So it was जब तक कि वह लोग को विदा करें। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। we see that it was a great miracle, and even after God's glory was displayed in that miracle, Jesus is setting aside time to pray. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पर एक बहुत ही बड़ा अद्भुत कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी जब वो खत्म हो गया, तभी भी उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताया। He would have taught them many things, and he would have been physically tired as well. उन्होंने, हम देखते हैं कि कई दिनों से वो वहां पर सिखा रहे थे सारे जेलों को, वो थके हुए भी होंगे, लेकिन तभी भी वो वापस उसमें गए। But we see that Jesus chose to pray. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने प्रार्थना करने का चुनाव किया तब भी। So during any time, whether it is something great breakthrough that we have received, or a sorrowful condition, or no matter what we face in life, our routine should be prayer. तो जीवन में भी हमारे साथ जब कई बार हमें किसी तरह के प्रार्थनाओं का जवाब मिला हो या उत्तर मिला हो, या किसी तरह की छुटकारा या ऐसी चीजों में जो परमेश्वर ने हमें दिया हो, इसके बावजूद भी हमें तभी भी परमेश्वर में उतना ही अधिक समय बिताना चाहिए। So in Luke 6:12, we see that Jesus prayed the whole of the night before choosing the 12 disciples. तो लूका 6:12 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, इससे पहले कि वो अपने चेलों के पास जा सके। So it was before an important decision. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, फैसला लेने के पहले था। Whom to choose as his disciples? किसे अपने चेलों के हिसाब से वो चुने। Jesus prayed the whole night. यीशु मसीह ने पूरी रात इस बारे में प्रार्थना की। If you need a break or you need some water, you okay? Okay. So we see that Jesus always prayed, and we see that Jesus never experienced failure in prayer. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना की और वो इसमें कभी भी असफल नहीं रहे। See, even during the last hour, he knew that his time is coming. At that time, he went into Gethsemane to pray to God. जब उन्हें पता था कि उनका अंतिम समय आ गया है, तभी भी यीशु मसीह गेत्सेमने गए प्रार्थना करने के लिए। So we see always he's surrendering to the Father's will, and he's always keen on doing the Father's will. तो हम देखते हैं कि यीशु ने हमेशा पिता परमेश्वर के आगे समर्पण का भाव रखा और उनके आगे समर्पण किया। And there is one instance that I would like to say is when we see the life of Jesus, everything about Jesus was revolved in his time with God. हम यीशु के जीवन में देखते हैं एक बात, अगर आप ध्यान दें तो हर वो चीज जो यीशु के जीवन के चारों तरफ था, वो इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड, वो यीशु का जो परमेश्वर के साथ जो समय था उसके चारों ओर था। So we are his disciples, and the Bible says the disciple is to be like his master. तो हम उनके चेलों के जैसे हैं, और वचन ये कहता है कि चेले को उसके स्वामी के समान होना है। So when we see the life of Jesus, we are supposed to be praying like Jesus.
तो जब हम यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, हम उन्हीं की तरह प्रार्थना करने So चाहिए। everything God has intended for us, we receive in prayer. तो जो भी परमेश्वर हमारे लिए जो योजनाएं परमेश्वर की हमारे लिए हैं, उन्हें हम प्रार्थना में स्वीकार करते हैं। So God has already ordained everything for us. परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही कर रखा है, So we will know His will only if we spend time in prayer. परंतु हम उनकी इच्छा तभी जान पाएंगे जब हम उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। So there might be decisions that you have to take. तो शायद अब हमारे जीवन में ऐसे कुछ फैसले होंगे जो हमें लेने होंगे, We should spend time in prayer. तो हमें जरूर प्रार्थना में समय व्यतीत करना So है। God will reveal to us the right decision, the right step to take. तो परमेश्वर हमें ये इस बात की प्रकटीकरण करेगा कि हमें उस वक्त कौन सा फैसला लेना है या कौन सा सही रास्ता होगा। So another thing is, when we pray in accordance to God's will, we will never experience failure, and there is always answers to our prayer. तो हम जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो हमें कभी भी इस बात पे कोई असफलता नहीं होगी, और और ये हमें इस बात का विश्वास रखना है कि वो हमेशा हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। So God hears us when we pray. तो परमेश्वर हमें सुनता है जब हम उनके आगे प्रार्थना करते हैं। So sometimes we don't have the conviction that He hears us, but we grow into that level from time to time. कई बार जो है हमें इस बात का विश्वास नहीं होता है पूरी तरह से, पर हम ये समय से आगे बढ़ते जब जाएंगे तब हम इस बात पे और दृढ़ता से विश्वास करने पाएंगे। Because God has designed prayer, we can be so sure that we will never experience failure in prayer. क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना शैली को जो है उस चीज को रचा है, इसीलिए हमें इसमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। Can we read Psalms chapter 65 verse 2? भजन संहिता 65 का 2। So we see that God answers prayer and He hears us. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, सुनता है। So when we look to God in prayer, we humble ourselves to God and we receive the answers for our prayers. जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो या उनके आगे विनम्र होकर याचना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उनका उत्तर देता है। But sometimes we don't always receive what we ask in prayer. पर कई बार जो है हम प्रार्थना में इस चीजों को हमें उत्तर नहीं मिलता है जो हम मांगते हैं। So one thing is, it can be our wrong motives. तो ये कई बार हमारे जो गलत चिंताएं हो सकती है या गलत ध्यान and selfish desires. और हमारी जो स्वार्थी इच्छाएं हो सकती हैं हमारी। Sometimes we want to do things to please our flesh. कई बार जो है हम अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। God will not answer such prayers. परमेश्वर ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा। God will always answer prayers only if we ask in accordance to His word. अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार किसी चीज को मांगते हैं, वो तभी उसका उत्तर देता है। And sometimes we use the wrong kind of prayer. और कई बार हम गलत तरीके के प्रार्थनाओं को करते हैं। God's intent is always to bless us. परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमें आशीषित करने या हमें अनुग्रह देने का है। God's intent is always to heal us. परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमें चंगा करने में है। So sometimes we use wrong intentions. तो कई बार हम गलत उद्देश्यों को लेके चलते हैं। And God, when we yield to God, He convicts us and aligns us according to His purpose. जब हम परमेश्वर को चाहते हैं तो वो हमारे इच्छाओं को, हमारे आग्रहों को उनके अनुसार आधारित करता है। Sometimes we give up even before the answer is coming. हम जवाब मिलने से कई बार उसके पहले ही हम हार मान लेते हैं।
So sometimes God would have asked us to wait for a particular season, but we would be praying the right prayers. But before that answer, we would have given up. We would have got discouraged. तो कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने शायद हमें उस चीज का जवाब दिया होगा, पर लेकिन हम उस चीज का उत्तर मिलने से पहले ही हम हार मान के छोड़ देते हैं। And there can also be hindrances in our own prayer life, like sin, unbelief. Sometimes we are so prideful and we don't confess that. That could be a hindrance for our तो prayer. कई बार हमारे जीवन की जो ऐसी चीजें होते हैं जो हमारे प्रार्थना में बाधा डालते हैं, जैसे कि पाप होंगे या फिर अविश्वास या तो हमारे खुद के जो अहंकार, ऐसी चीजें प्रार्थना में बाधा डालती हैं। So these are some hindrances that we don't receive answer for prayers. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के जब हम प्रार्थना करते हैं उससे हमें उसके उत्तर पाने से हमें दूर रखता है। Thank you. We'll continue after our break. हम ब्रेक के बाद आगे सीखेंगे।